hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. Hello friends, welcome to Extra Time. This is a completely new venture that we're trying to bring to you. This is a podcast to share stories about the life of popular sports persons that would help us to know them better and to take inspiration from their lives, which would in turn help us to see our lives from a different angle. And today we'll talk about someone who has almost seen it all during his teens. Yes, I'm talking about Ansu Fati, a talented Barca teen deemed to be a future superstar, who is already no less than a star for his club, Football Club Barcelona, and his country, Spain. We'll talk about him as a player, but we'll talk more about his battle with injuries, about how he overcame a grave injury to fight and come back onto the football field. Born in Guinea, Ansu Fati and his family immigrated to Seville when he was too young and got picked by the famous La Masia Academy in Catalonia due to his supreme talents with the ball. As many of us know that Ansu made his debut for Barca at the age of just 16. Can you imagine that? Can we imagine that? I guess no, because most of us don't have what it takes to debut for Football Club Barcelona at the tender age of 16. जिस उम्र में हम सभी लोग स्कूल जाते हैं, उसी उम्र में ये लड़का फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए डेब्यू कर रहा था, और उसके फर्स्ट सीजन में ही 2019-20 के सीजन में ही he became the youngest ever scorer for Barcelona in the La Liga and also the youngest ever scorer in the Champions League. Yes, he was even younger than Lionel Messi जब उसने ये किया. ऐसे ही चल रहा था उसका कैरियर, ऐसे ही चल रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था वो, लेकिन बीच में आया एक इंजरी. November 9th, 2020, his life was rocked. और उसको जो इंजरी हुआ वो था लेफ्ट नी का मेनिस्कस टियर. एक ऐसा इंजरी जो एक एथलीट का कैरियर भी ख़त्म कर सकता है, और जी हाँ, उसका कैरियर भी ख़त्म हो सकता था. However, he was declared injured by the club, और ऐसा ही बोला गया था कि वो 4 महीने के लिए बाहर हो रहा है. लेकिन किस्मत का ऐसा मंजूर नहीं था. The teenager, the little kid, went through 3 unsuccessful operations. Can you imagine? Can we imagine the pain what he has gone through? I guess no. 3 unsuccessful operations से गुजरने के बाद भी वो लड़का हारा नहीं. He was not defeated. He was not defeated by the situation. He was not defeated by his injuries. He was not defeated by anything. उसके बाद earlier this year he went through a 4th operation. A 4th operation in the left knee at the tender age of 18. एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उसका लेफ्ट मेनिस्कस रिमूव किया गया. एक ऐसा ऑपरेशन जो करने से पहले उसको मालूम था कि his career could be doomed in the long run. The boy missed the Euros. The boy missed the Olympics for his country. फुटबॉलर या कोई भी एक एथलीट के लिए इससे बड़ा और इससे ज़्यादा दर्द कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं. उसने पूरे 1 साल चोट के चलते मिस कर दिया, और ऐसी एक चोट जिससे उसका कैरियर ख़त्म होने का बहुत चांसेस था. बट वो डरा नहीं सिचुएशन से, एंड ही फॉट हिज वे बैक इनटू द फील्ड. ही डिड प्योर हार्ड वर्क, ही शोड डेडिकेशन, ही शोड परसिवरेंस, एंड ही केम बैक ऑन टू द फुटबॉल फील्ड इसी साल के सितंबर महीने में. He scored a dazzling goal against Levante, और उनके टीममेट्स ने उनके साथ ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि लियोनेल मेसी के साथ वो करते थे. जी हाँ, यही होता है कमबैक, यही होता है मेंटल स्ट्रेंथ, यही होता है डेडिकेशन, यही होता है परसिवरेंस. And this dedication of his has compelled us to do this story,
टू डू दिस स्टोरी अबाउट अ बॉय जिसकी मिसाल हम सब लोग फ्यूचर में देने वाले हैं. बिलीव मी, हम सब लोग देने वाले हैं. जैसे हम आज मिसाल देते हैं लियोनेल मेसी की, जैसे हम आज एग्जाम्पल देते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वैसे ही इसी लड़के के बारे में हम लोग फ्यूचर में भी बहुत सारे मिसाल देंगे. एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट. बिलीव मी, दिस इज जस्ट द स्टार्ट. और वो दृश्य देख के ऐसा लग रहा था हम फुटबॉल फैंस को जैसे कि वी आर सीइंग द बर्थ ऑफ अ सुपरस्टार, बर्थ ऑफ अ मेगा स्टार, द बर्थ ऑफ अ जेनरेशनल आइकॉन, जिसकी मिसाल हम सब लोग फ्यूचर में देने वाले हैं, जिससे इंस्पिरेशन हम सब लोग फ्यूचर में लेने वाले हैं. एंड दैट इज व्हाट हैज मेड अस टू डू दिस स्टोरी अगेन. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. ये स्टोरी करने का हमारा असली उद्देश्य ये है कि वी शुड नेवर बी डिफीटेड बाय द सिचुएशन. वी शुड नेवर बाउ डाउन टू डिप्रेशन. और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि ग्लोबली डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है आजकल. सो वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट दिस माइटी इलनेस. और हम सबको इन स्पोर्ट्स पर्सन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. ऐसे ही बहुत सारे स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एक्स्ट्रा टाइम. तब तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ, अनुभव सेनगुप्ता. Extra time! Extra time!